أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد الأشرف النبي ولي المؤمنين أفضل الوكيل أفضل خير المرسلين استاذ الروح الأمين ولي رب العالمين خليفة المسلمين قاتل المشركين ولی اللہ اسد اللہ غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب صلی اللہ محمد علی محمد رجل فرجہم والسلام علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والعلوم الباقریہ والآثار الجعفریہ والمعاصر القاسمیہ والحجة الرضویہ والجود التقوی والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الإلہیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم تمام تعریف سے واقف کے لیے اس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں وہ پروردگار جو پوری کائنات کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے اس کی حمد و ثنا مولا متقیان نظر برابر میں صنعت صفات ہیں کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس کی وجہ سے بولنے والے کی رسائی ممکن نہیں، جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے گر نہیں سکتے اور کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، نہ بلند پرواز ہمتوں سے پا سکتی ہیں اور نہ اپنے فہم کی گہرائیاں اس کی لہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ بات ہم تو سنا پروردگار عالم ہمارے تمام تر درود و سلام ان ہنسوں پر جو مقرب پاک پروردگار ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم مقرب پاک پروردگار ہے، محافظ اسلام ہے، مالک کتاب ہے، نصرت خدا ہے اور کتاب خدا میں ان نامہ کا تعزیز تنکیے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم پروردگار سلام نے کہہ رہا ہے کہ ہم زمین سے خلیفہ بنائیں گے انہیں جنہوں نے عمل صالح کیے ہوں گے۔ پروردگار وعدہ کر رہا ہے کہ ہم بنائیں گے زمین سے خلیفہ جنہوں نے عمل صالح کیے ہوں گے۔ تو اب اگر دو ایمان ہو، دو لوگ ہوں جن کا ایمان ایک کا فرض کر لیا جائے لیکن ایک ابتدائی ولادت سے ایمان والا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جس نے نصف سے زائد عمر شک و شبے میں گزاری ہے، تو ایسی صورت میں پورا انتخاب اس کی طرف پڑے گا کہ جو ابتدائی ولادت سے مسلمان ہو۔ اور اگر دنیا دونوں کو ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دے گی تو یہ تو ممکن نہ ہوگا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے نصف سے زائد عمر شک و شبے میں گزاری ہے، بت پرستی میں گزاری، اور دوسرا وہ ہے کہ جو ایسا مجسم ایمان ہے کہ جسے پروردگار کے رسول نے کل ایمان کہہ دیا۔ تو ایسی صورت میں ایمان والا اسے پسند کرے گا کہ جو کل ایمان ہو، تو بس پروردگار کہہ رہے ہیں ہم خلیفہ بنائیں گے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول خلیفہ بنا کے نہیں گئے بلکہ یہ کام امت سے چھوڑ دیا، تو ہم کہیں گے معاذ اللہ قرآن کا وعدہ جھوٹا، پروردگار کا وعدہ جھوٹا، کیونکہ ہمارا قرآن نہیں مان ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ہم خلیفہ بنائیں گے جنہوں نے عمل صالح کیے ہوں گے، جنہوں نے کوئی اگر کسی نے غیر والے عمل کیا ہوگا تو وہ خلیفہ رسول کی تعریف میں نہیں آ سکتا۔ تو آپ بتائیں اگر کسی نبی کی نبوت پہ شک کیا ہوگا تو وہ عمل صالح یا غیر صالح عمل ہے؟ اگر عمل صالح کہہ دیا تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو بس اگر کسی نے کوئی غیر صالح عمل کیا ہوگا تو وہ خلیفہ رسول کی تعریف میں نہیں آ سکتا۔ اب یہاں پہ آدم بھی خلیفہ رسول کی تعریف میں نہیں آ سکتے کیونکہ آدم سے کر کے اولا ہوا تھا، وہ کے کر کے اولا تھا، مگر یہ غیر صالح عمل ہے۔ تو بس جب آدم عرب والوں کے سامنے خلیفہ رسول نہیں بن سکتے تو پھر باقی عرب والوں کا کیا تذکرہ کہ جب آدم ہی علی کے پانی میں حق پانے سے معذور
पर क्या तस्करा। तो अब किसी ऐसे को तलाश करो कि जिससे सुफैल आदम की दुआ कबूल हुई हो, जिसकी वजह से नूह की कश्ती को किनारा मिला हो, जिसने इब्राहिम की आग को गुलो गुलजार बनाया हो, जिसने ईसा को मसीहाई अता की हो, जिसका जलवा मूसा ने कोई दूर में देखा हो। तो बस परवरदिगार कह रहे हैं हम खलीफा बनाएंगे जिन्होंने हमने सौदे किए होंगे, जैसे हमने तुमसे पहले अगलों को खलीफा बनाया। और सलामत खुदा कह रहे हैं हम खलीफा बनाएंगे। तो वो माबूद बयान जिसने जमीन और आसमान को खरीद किया वही इस बात का मालिक है कि वो खलीफा बनाए। और खुदा कह रहे हैं हम ऐसे खलीफा बनाएंगे जैसे तुमसे अगलों को खलीफा बनाया था कि पहला खलीफा परवरदिगार ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया, कि हजरत आदम को परवरदिगार ने खिलाफत अता की। दूसरा खलीफा परवरदिगार ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनाया। जब जनाब दाऊद को खिलाफत दी गई तो परवरदिगार ने कहा कि दाऊद हम तुम्हें जमीन का खलीफा बना रहे हैं और देखो अपनी ख्वाहिशात का इत्तबा ना करना वरना गुमराह हो जाओगे। जनाब दाऊद मासूम है, लेकिन परवरदिगार फिर भी कह रहे हैं कि देखो दाऊद अपनी ख्वाहिशात का इत्तबा ना करना वरना गुमराह हो जाओगे। तो परवरदिगार का दाऊद से ऐसी उम्मीद थी। जनाब दाऊद मासूम है, नबी है, मगर परवरदिगार बताना ये चाहता था आने वाली उम्मत को भी जब मैं खलीफा बनाता हूँ, नबी को भी जब खलीफा बनाता हूँ तो बावजूद इस बात के मुझे ये कहना पड़ता है कि देखो अपनी ख्वाहिशात का इस्तेमाल न करना। वो कल में दाऊद का ऐसा ना था कि कभी बातिल की जानिब झुकाओ। और पहचानिए दाऊद के सिवाय खुदा परस्ती के कोई निशान न था तो फिर वो लोग जिन्होंने सारी उम्र बुतों को सजदा किया हो कि वो खलीफा रसूल कैसे बन सकते हैं। तो बस हजरत आदम को परवरदिगार ने खलीफा बनाया, हजरत दाऊद को खलीफा बनाया। हजरत आदम कौन थे? हजरत आदम तुराब से बनाए गए थे, तुराबी से। लेकिन खलीफा रसूल, अब खलीफा रसूल तुराबी नहीं बन सकता, खलीफा रसूल के लिए अबू तुराब होना जरूरी है। कि हजरत दाऊद अपने जमाने के खलीफा हजरत दाऊद की सिफत से आती के लोहे को मोम कर देते थे। तो बस अब रसूल का खलीफा कोई ऐसा होना चाहिए कि जो दाऊद से भी अफजल हो। दाऊद की ये सिफत कि लोहे को मोम कर दे, तो बस खलीफा रसूल वो कि जो दरे खैबर को 2 उंगलियों में बुलंद कर दे। तो बस परवरदिगार कह रहे हैं हम खलीफा बनाएंगे और जाहिर है रहमतुल आलमीन का खलीफा रब्बुल आलमीन ही बना सकता है। जिसको तमाम कुव्वत का अंदाजा ना हो, जिसे पूरी आलम की कुव्वत का अंदाजा ना हो, वो रसूल का खलीफा कैसे बनाएगा। तो बस रहमतुल आलमीन का खलीफा रब्बुल आलमीन बनाएगा। और किसे बनाएगा कि हजरत दाऊद से कहा गया कि देखो अपनी ख्वाहिशात का इस्तेमाल न करना वरना गुमराह हो जाओगे। तो बस अब रसूल का खलीफा ऐसा होना चाहिए कि जिसके लिए खुद परवरदिगार कह दे कि आंखें हैं मिलना है, कानून मिलना है, खुद हाथ यदुल्ला है, खुद वली उल्ला है। अब परवरदिगार ये नहीं कह सकता कि देखो अपनी ख्वाहिशात का इस्तेमाल ना करना वरना गुमराह हो जाओगे, क्योंकि परवरदिगार ने तमाम के तमाम आदम को अपनी तरफ मुंतब कर दिया है, मंसूब कर दिया है। अब इनसे गलती का इम्कान ही नहीं है, क्योंकि अगर इनसे गलती का इम्कान होता तो ये कहते हैं अगर बारेला हमसे गलती का इम्कान था तो हमारे आदम को अपनी तरफ मंसूब क्यों किया, हमारे आदम को अपनी तरफ मंसूब क्यों किया। तो बस अब अली जो है तमाम के तमाम खुदा की तरफ मंसूब हो गए हैं। अब अगर कोई अली को बुरा कहेगा तो वो अली को बुरा नहीं कहेगा, खुदा को बुरा कहेगा। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या हैदरी या नारे सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरमान। सलामत शकील अली कहने वालों को तीसरा खलीफा परवरदिगार ने हज़रत हारून को बनाया कि जनाब मूसा ने दुआ की कि बारेला मेरे भाई को मेरा वजीर और मेरा खलीफा बना दे।
تو परवरदिगार ने 3 खलीफा बनाए तो तीनों मासूम खलीफा थे। उस जमाने में जबकि उम्र छोटी थी उस वक्त भी खिलाफत के लिए मासूमियत शर्त थी, इसमत का होना जरूरी था। तो जब आज उम्र बढ़ गई है तो क्या आप गैर मासूम खलीफा बना दिए जाएंगे? 3 खलीफा परवरदिगार ने बनाए, तीनों मासूम बनाए। तो बस परवरदिगार खलीफा बनाएगा और किसे खलीफा बनाएगा कि जिसका हर फेर रसूल से मुशाबे होगा और इतना मुशाबे होगा कि रसूल मुस्तफा है तो वो मुर्तजा होगा। बस रसूल का खलीफा कौन होगा कि रसूल अगर शहर इल्म है तो रसूल का खलीफा वो होगा कि जो बाबे इल्म हो, जो मिंबर पे बैठ के ये कह सके कि पूछो इससे कबल कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊँ। तो बस एक मरतबा मौला मिंबर पे बैठ के खुतबा दे रहे हैं, हवाएं रुक रुक के सुन रही हैं, सितारे झुक झुक के देख रहे हैं, ईसा मुशाहिदा कर रहे हैं, यूसुफ मुलाहिदा कर रहे हैं, मूसा देख रहे हैं, इब्राहिम देख रहे हैं। बस मौला ने कहा कि पूछो इससे कबल कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊँ। किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक यहूदी खड़ा हो गया, या अली ये बता दीजिए कि ये जमीन आसमान की तकलीफ कैसे हुई? आज भी तमाम साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि जमीन आसमान किस तरह से क्रिएट हुई। तो आज से 1400 बरस पहले वो शख्स कहता है मौला ये बता दीजिए जमीन आसमान कैसे बनाई गई? तो मौला ने मुस्कुरा के कहा कि परवरदिगार ने एक जमीन और आसमान जितना नेचर तैयार किया, एक मादा तैयार किया और फिर उस पर नजर डाली। तो बस वो जलालत इलाही से पानी पानी हो गया और उसमें आबी बुखारात पैदा हुए और कुछ झाग पैदा हुई। तो आबी बुखारात से आसमान को बनाता चला गया, झाग से जमीन को बनाता चला गया। वो कहता है कि मौला अपने बयान में कुछ इजाफा बनवा दीजिए। तो फिर मौला कहते हैं कि बस पहली जमीन से पहले आसमान का फासला जो है वो 500 साल नजर का फासला है, जिसे साइंस में लाइट ईयर कहते हैं। तो फिर मौला ने उसको बताया कि परवरदिगार ने पहला आसमान बनाया जिसमें बहुत सारे फरिश्ते हैं, उसके बाद परवरदिगार ने दूसरा आसमान बनाया जिसमें एक फरिश्ता ऐसा है जिसका आधा जिस्म बर्फ का है और आधा जिस्म आग का है और दरमियान में एक खत है। और ना बर्फ आग को बुझाती है और ना आग बर्फ को पिघलाती है और वो कयामत तक वो फरिश्ता उसी तरह रहेगा। फिर परवरदिगार ने तीसरा आसमान बनवाया जिसमें इतने फरिश्ते हैं कि जिनका शुमार नहीं हो सकता, कि जो कोई रुकू की हालत में, कोई कयाम में, कोई सजदे में है और वो इसी तरह कयामत तक तस्बीह करते रहेंगे। फिर परवरदिगार ने चौथा आसमान बनाया, पांचवा आसमान और छठा आसमान बनाया और छठे आसमान के ऊपर इतना बड़ा खला है कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उस खला, उस स्टेज के ऊपर एक सुरमई रंग का बादल है जो पूरा का पूरा उस कला को कवर किए हुए। उसके बाद मौला कहते हैं कि बस उसके ऊपर परवरदिगार के मौला बता रहे हैं कि उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर एक मुकाम है जिसे मुकाम मजमून